Good morning to all. I am Devendra Kumar from Kendriya Vidyalaya EVS Babugarh Kent, and today we discuss about the chapter Simple Equation of Class 7. So here are few contents we have to discussing in this chapter, and these are simple equation. The first content is what is an equation. Then second, how to find out the solution of an equation. And the third one is write an equation in a statement form. And fourth one, write a statement in an equation form. And lastly, we discuss some practical problems about simple equation. So here we go. The first is, what is an equation? Then answer is, equating two expression is called an equation. An equation contains an equal to sign. For example, 2x plus 3 equal to 5. So student, you have to know, when we only write 2x plus 3, this is not an equation, this is just only an expression. If we write 2x plus 3 equal to 5, means we put a sign equal to between two expression, and equation will be formed. Then so we have to know what is the difference between an expression and an equation. In equation there are two sides, left hand sides and right hand side. So here I write an equation and an expression. So point 1, contain an equal to sign. In an equation there must be an equal to sign. For example, 7x plus 3 equal to 24. So this is the example of equation. And other side, we see on the right hand side, expression does not contain equal to sign. For example, 3x plus 6. So here 3x plus 6 is only one expression, there is no equal to sign, so we can say it is an expression, but we simplify an expression. And in equation we have to find out the value of a variable, that is x. So now we discussing how to find out the solution of an equation. So finding the solution of an equation or solving an equation means finding the value of variable. The variable is any alphabet A to Z, or we can say unknown value. That satisfied the equation, that is left hand side equal to right hand side. So we have to find out the value of a variable. Here example is given, 5 plus x equal to 8. So we know the value 5 and value 8, but x is not defined here. So we have to find out the value of x. So अगर हम simply देखें तो which number we have to add in 5 to get 8? It is 3. So 3 is the value of x and solution of the equation 5 plus 3 equal to 8. So in an equation, left hand side is always equal to right hand side, and 8 equal to 8. So value of x is 3. So here some rules to solving an equation. Equation को solve करने के लिए हमें कुछ rules follow करने पड़ेंगे, जो कि मैंने पॉइंट 1 to 4 में डिस्कस किए हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज ऐड सेम नंबर ऑन बोथ साइड. तो एग्जाम्पल यहाँ में दिया गया है x माइनस 1 इक्वल टू 8. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x के साथ जो माइनस 1 है उसे ख़त्म करना है. तो माइनस 1 को हम प्लस 1 के साथ ख़त्म कर सकते हैं. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और 1 जो है हमने राइट हैंड साइड में भी ऐड किया. एट 8 प्लस 1 इक्वल टू 9. सो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 9 मिल गई. नाउ द सेकेंड वन, सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, यानी जो नंबर हमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करना है वही हमें राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करना है. हेयर x प्लस 1 इक्वल टू 8, प्लस 1 को ख़त्म करने के लिए हम माइनस 1 को यूज़ करेंगे, और माइनस 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड से. तो x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 1, एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7. नाउ द मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द सेम नंबर. अगर आपके पास एक
इक्वेशन दी है x/3 = 5, तो 3 को ख़त्म करने के लिए हमें इस ऊपर एक 3 चाहिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड। सो x × 3/3 = 5 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाने पे आपको मिलेगा x = 15। नाउ द नेक्स्ट वन, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द सेम नंबर। So here is 3x = 15. 3x means 3 × x = 15. तो 3 को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, पर हम बैलेंस कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 वी गेट 3x/3 = 15/3, दैट इज x = 5। One thing more you kept in mind that left hand and right hand side can be interchanged. अगर आपके पास लिखा है 4 = 3x, we can also write it as 3x = 4. Now transposing. Transposing means moving from one side to other. When a term is transposed from one side to the equation to the other side, its sign get changed. अगर हम अपनी इक्वेशन की किसी भी टर्म को इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो साइंस चेंज होते हैं। जैसे प्लस राइट हैंड साइड जाने पर माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में चेंज हो जाता है और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल x + 3 = 8, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तरीका था कि हम इसमें -3 ऐड कर दें और सेकंड तरीका है हम 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो x = 8 - 3, प्लस का 3 था तो माइनस हो गया, तो x = 5। एंड द सेकंड एग्जांपल इज x - 3 = 8, तो -3 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x = 11 इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, 3 × x = 18 और वी कैन से 3x = 18। तो मल्टीप्लाई का साइन मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई का साइन जब है तो वो नंबर जब दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो फॉर x = 18/3, दैट इज x = 6। नेक्स्ट वन, x / 2 = 8। तो डिवीज़न जो थी सेकंड साइड जाकर यानी राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज होती है, तो x = 8 × 2, दैट इज x = 16। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन अप्लाइंग सेम इक्वेशन रूल्स ऑन बोथ साइड। यानी हमें सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है लेफ्ट हैंड साइड में एज वेल एज राइट हैंड साइड में, दैट इज़ हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है। 5x - 1 = 74। Now add 1 on both sides. 5x - 1 + 1 = 74 + 1 and we get 5x = 75. नाउ 5 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × x मल्टीप्लाई का है तो हमें इसे ख़त्म करने के लिए 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 वी गेट 5x/5 = 75/5, दैट इज़ x = 15। And the next example is 2x + 5 = 15. Subtract 5 from both sides. 2x + 5 - 5 = 15 - 5, that is 2x = 10। and 2 को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड 2 फ्रॉम इन बोथ साइड एंड 2x/2 = 10/2, that is x = 5. Now check whether the value of given in the bracket is solution of the given equation. जब हमें वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे और पता करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। अगर आती है तो वो सॉल्यूशन है गिवन वैल्यू, अदरवाइज़ वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो 7 × 2 + 5 = 19 और 14 + 5 = 19 and 19 = 19, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज़ द solution and the value of n = 2 is the solution of the equation. Solve the following equation by transposing and check the solution. कई बार हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को और फिर वापस वो वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आती है या नहीं आती।
तो इक्वेशन है 14 इक्वल टू 27 माइनस एक्स। एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो साइन चेंज हो गया हमारा, 14 प्लस एक्स इक्वल टू 27। देन नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 27। 14 जब के सामने कोई साइन नहीं है तो उसको प्लस का साइन माना जाता है, तो 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू हमारी 13 मिल गई। पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, इसका चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम वापस गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। और 14 इक्वल टू 27 माइनस एक्स, दैट इज़ 14 इक्वल टू 27 माइनस 13 एंड 14 इक्वल टू 14, दैट मीन्स 13 is the solution of the given equation because left hand side equal to right hand side. Now convert equation in a statement form. Write the following equation in the statement form. जब हम इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो हम जो हमें इक्वेशन दी है उसको ध्यान से देखते हैं, उसके साइंस को ध्यान से देखते हैं, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम सही स्टेटमेंट लिख पाएँ। तो यहाँ पर इक्वेशन है p प्लस 4 मीन्स एडिशन ऑफ p एंड 4 जो है वो हमें आंसर दे रहा है 15 का। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। सेकंड है p इक्वल टू 15 माइनस 4, जो p की वैल्यू है वो 15 से 4 कम है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, p इज़ 4 लेस देन 15। p जो है 15 से 4 कम है। थर्ड यू कैन सी m माइनस 7 इक्वल टू 3, यानी m में से अगर हम 7 को माइनस करें तो हमें 3 मिलना चाहिए। तो हम क्या लिख देते हैं, इफ़ यू टेक अवे 7, टेक अवे यानी माइनस करना, इफ़ यू टेक अवे 7 फ्रॉम द m यू गेट 3। तो लास्ट है m इक्वल टू 3 प्लस 7। m जो है 3 प्लस 7 का सम है, m इज़ 7 मोर देन 3, और वी कैन से m इक्वल टू एडिशन ऑफ 3 प्लस 7 और सम ऑफ 3 प्लस 7। Now vice versa. Now statement is given to you, you have to convert it into the equation. The first is the sum of the 3 times of x and 11 is 32. The sum of 3 times x and 11 यानी 3x plus 11 we get 32 equal to 32. If you subtract 5 from 6 time of a number, 6 time of a number, let me assume the number is x, 6 time of a number is 6x, and we have to subtract 5 from it, 6x minus 5, you get 7 equal to 7. So we got the equation 6x minus 5 equal to 7. Now the third one is 1/4 of m. 1/4 of m is m by 4. Is 3 more than 7? m by 4 equal to 3 plus 7, or we can 7 plus 3. Last one, 1/4 of m is 3 less than 7. So m by 4 equal to 3 less than 7. 7 minus 3 is the given equation. Now we do some practical problems जो हमें we can say also word problems or statement problems. The first one is sum of 3 times of a number. Let the number is x, 3 time of a number is 3x. The sum of 3 time of a number 3x and 11 plus 11 is 32 equal to 32. So हम ट्रांसपोजिंग में 11 को क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का था माइनस हो गया, 3x इक्वल टू 21 आ गया, 3 इंटू एक्स इंटू उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू 21/3 एंड वी गेट x इक्वल टू 7। द नंबर इज़ 7। हम इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर हम गिवन इक्वेशन में इस वैल्यू को रखें तो हमें 32 ही मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम वैल्यू को पुट करें तो वो 32 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सम इज मुन्ना थिंक्स ऑफ ए नंबर, लेट द नंबर इज x। मुन्ना थिंक्स ऑफ ए नंबर, हमने एक नंबर मान लिया x। इफ़ शी एड 19 टू इट एंड डिवाइड द सम बाय 5। अगर हम इस नंबर में 19 को ऐड करें और उस पूरे टर्म को x प्लस 19 को 5 से डिवाइड करें, वी गेट 8। सो x प्लस 19 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवीज़न में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 इंटू 5 हो गया, x प्लस 19 इक्वल टू 40 मिल गया हमें, और x इक्वल टू 19 को दूसरी तरफ ले गए, माइनस किया हमने, तो x इक्वल टू 21 हमें मिल गया, एंड x इक्वल टू 21 इज़ द गिवन सॉल्यूशन। And the last one, the 3
sides of a triangle are consecutive integer and their perimeter is 72 centimeter. Find the measure of each side of the triangle. हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी साइड के बारे में दिया हुआ है कि 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंजिक्यूटिव, यानी एक जो भी एक साइड है उससे एक ज़्यादा दूसरी है, फिर 2 ज़्यादा तीसरी है। तो हमने मान लिया फर्स्ट साइड ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड सी ए इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये हमें 3 साइड्स मिल गई। तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, यानी हमें तीनों साइड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और वी कैन से 72 प्लस इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला? 3x प्लस 3 इक्वल टू 72 और 3x इक्वल टू 72 माइनस 3। 3x इक्वल टू 69 मीन्स 3 से हमें 69 को डिवाइड करना पड़ेगा तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो वो हमें डिवीज़न के बाद मिली 23। सो ए बी इक्वल टू 23 आ गया, तो नेक्स्ट उससे एक ज़्यादा होगा 24 और नेक्स्ट उससे 2 ज़्यादा होगा 25 सेंटीमीटर। सो दीज आर द मेन कंटेंट टू सॉल्व एन ए सिंपल इक्वेशन विच इज़ इन class 7 chapter simple equation. So I hope you understand all the concept and when you are going to solve the exercise, these concepts will help you and you can easily find out the value of simple equation. So hope you all understand the basic concept of simple equation. Again, I am Devendra Kumar, TGT Maths in Kendriya Vidyalaya EVS Babugand, and wish you all the best for upcoming session, and thank you very much.